السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ میں تم جیسے باکمال شخص سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ میرا نام جیکسن ہے اور میں ریس کورس کا بادشاہ کہلاتا ہوں۔ میرے پاس 20 گھوڑے ہیں اور لوگ میرے پاس اپنی تقدیر بنانے آتے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ تم بھی انہی میں سے ایک ہو۔ نہیں، مجھے اپنی تقدیر خود بنانی آتی ہے۔ میں نے کہا، کچھ پیو گے میرے ساتھ؟ نہیں شکریہ۔ اچھا، میرا یہ کارڈ رکھ لو، اگر کبھی میرے لائق کوئی کام ہو تو مجھے ضرور مل لینا۔ اس نے جیب سے اپنا خوبصورت کارڈ نکال کر مجھے دیا اور میں اسے جیب میں رکھ کر واپس گیانی کے پاس آ گیا۔ وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، تمہارے اندر ایک بڑی خوبی ہے۔ کیا؟ میں نے بیٹھتے ہوئے کہا، جو کام تمہیں دیا جاتا ہے اسے بڑی خوبی سے کرتے ہو۔ میں دیکھ رہا تھا کہ تم نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ تم نہیں جانتے کہ وہ کتنے کام کا آدمی ہے اور ہم اس کے ذریعے بے شمار لوگوں کو غلط راستوں پر ڈال سکتے ہیں۔ غلط راستوں پر؟ میں نے چونک کر کہا اور مجھے یوں لگا جیسے گنگوتری کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ خاموش ہو گیا۔ گنگوتری میرے لیے برا انسان نہیں تھا۔ وہ اندر سے کیا تھا میں نہیں جانتا، نہ ہی مجھے جاننے کی خواہش تھی۔ زندگی کو کیا چاہیے ہوتا ہے، کبھی کوئی انسان خود اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر پاتا۔ ہمارے گھر ہوتے ہیں، رشتے ہوتے ہیں اور ان رشتوں کے لیے جذبات ہوتے ہیں اور ہم ان کے پیار میں ڈوبے زندگی گزار دیتے ہیں اور بس۔ گنگوتری کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ اصل میں کیا ہے اور اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اس دوران ہمارے درمیان کسی نئے کردار کا اضافہ بھی نہیں ہوا تھا۔ ایک دن میں نے گنگوتری سے کہا، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں مہاراج۔ ہاں پوچھو، میں کون ہوں؟ میرے اس سوال پر وہ چونکا، پھر مجھے غور سے دیکھ کر بولا، جو کوئی بھی ہو، یہ بتاؤ کہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں، میں نے کہا اور اس کی آنکھوں میں تحسین کے آثار پیدا ہو گئے۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے تمہارے اندر۔ کیا؟ جو دل میں ہوتا ہے بے دھڑک بول دیتے ہو۔ اچھا خیر، یہ بتاؤ کہ میرے پاس تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ تکلیف نہیں، الجھن ہے۔ وہ کیسے؟ آپ نے مجھے جیون کا ہر سکھ دے دیا، قیمتی لباس، قیمتی کھانا، زندگی کے اور بہت سے لوازمات، لیکن آپ کے ہر عمل کا اختتام ایک تشنگی چھوڑ جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ بھاگ بری اور اس کے پاس موجود لڑکی جس کے ساتھ میں نے رات گزاری تھی، جیکسن جس کے پاس مجھے بھیج کر آپ نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے، لیکن دوبارہ آپ ان سے ملنے کے لیے کبھی نہیں کہا۔ وہ سوچ میں ڈوب گیا، پھر بولا، ٹھیک کہتے ہو، لیکن میں نے تمہیں دوسرا علم دیا ہے۔ تم دوسروں کے بارے میں جان لیتے ہو۔ دوسروں کے بارے میں؟ ہاں، جیسے جیکسن کے بارے میں۔ بالکل، کیسے جان لیتے ہو؟ اس نے سوال کیا۔ ستاروں کی چال سے، میں نے پھٹ سے کہا۔ تو کیا پورے آکاش میں تمہیں اپنا کوئی ستارہ کبھی نظر نہیں آیا؟ اس نے کہا اور میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ میں حیرت سے منہ کھول کر رہ گیا۔ کتنی سادہ سی بات کہہ دی تھی اس نے، اور میں دوسروں کے بارے میں معلومات کر کے انہیں حیران کر سکتا تھا، اپنے بارے میں نہیں جان سکتا تھا۔ پھر دوسرے دن میں نے اپنی تلاش شروع کر دی۔ میری پوری راتیں اس تلاش میں گزرنے لگی، لیکن خود کو نہ ملا۔ ستارے تو میرا ساتھ نہیں دے سکے، لیکن اپنی ذات کے کچھ مٹے سے نقوش میرے ذہن میں ابھرنے لگے۔ کچھ گھر، کچھ لوگ، کچھ واقعات، مگر ان کی کوئی وضاحت نہیں ہو سکی کہ وہ کون تھے، کہاں تھے، میرا ان سے کیا واسطہ تھا۔ پھر ایک دن گنگوتری نے کہا، اور وہ ایک مشکل کام ہے۔ میں چونک گیا۔ میں نے تعجب سے کہا، کیا؟ جو تم کر رہے ہو، یعنی اپنی تلاش۔ وہ مشکل کیوں ہے؟ میں نے کسی قدر کرخت لہجے میں کہا۔ اس لیے کہ راست منی نہیں چاہتی کہ ابھی تم اپنے آپ میں واپس آؤ۔ گنگوتری کا لہجہ بھی سخت ہو گیا، گویا مجھے ایک کھلونا بنا کر رکھا گیا ہے۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی سختی ہوئی ہے تو کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں بتاؤ، ورنہ تم سے کچھ کام لینے ہیں اور بس، اور پھر تم جو من چاہے کرنا۔ میں خاموش ہو گیا۔ تنہائی میں نے سوچا کہ واقعی مجھے اس سے تعاون کرنا چاہیے۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ کافی دن گزر گئے اور پھر ایک دن اس نے کہا کہ شیام سندر، ہمیں کچھ وقت کے لیے یہاں سے چلنا ہے۔ کہاں؟
اور اس بارے میں تمہیں بتا دیا جائے گا، لیکن ابھی نہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے تم چاہو۔ ایک بہت اہم سوال کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ جی مہاراج۔ کام کچھ ایسا ہو کہ جو تمہیں اچھا نہ لگے لیکن میرے لیے ضروری ہو، تم اسے صرف میرے لیے انجام دے لو گے۔ کیا میں تمہاری نگاہ میں اتنی عزت رکھتا ہوں؟ آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے گنگوتری مہاراج، میں چاہوں تو بھی تمہارے حکم کے خلاف نہیں جا سکتا، مگر ایسے کسی کام کے لیے میرے دماغ میں تجسس پیدا ہو چکا تھا، تاہم میں تیار ہوں۔ میرے ان الفاظ پر وہ خوش ہو گیا تھا۔ بات ختم ہو گئی اور مجھے اس کے بارے میں تجسس ضرور تھا، لیکن میں نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ البتہ گیانی کافی مصروف رہا۔ اپنی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد آخر کار اس نے کہا، شیام سندر، تمہیں راجہ پور جانا ہے۔ ایک خوبصورت آبادی ہے وہاں، تم جس حیثیت سے جانے والے ہو اس میں تمہاری خوب آؤ بھگت ہوگی۔ کب؟ میں نے سوال کیا۔ کل تمہاری روانگی ہے، آپ میرے ساتھ ہوں گے؟ نہیں، اس نے جواب دیا اور میں چونک پڑا۔ وہ مسکرانے لگا، پھر بولا، لیکن بے فکر رہنا، میں تم سے زیادہ دور نہیں ہوں گا، پرنتو تمہیں خود پر بھی بھروسہ کرنا ہوگا اور کسی اڑی بھڑی پر اپنے بارے میں خود فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں خاموش ہو گیا۔ پھر دوسرے دن تقریباً رات کو 9 بجے میں ایک وین سے راجہ نگر کے لیے چل پڑا۔ میرے لیے سیٹ بک کرا دی گئی۔ ٹرین کے مسافر اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ سفر جاری رہا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ گنگوتری نے مجھے ایک غریب آدمی کا روپ دیا۔ مجھے راجہ نگر کے بارے میں سب کچھ بتا دیا گیا تھا۔ اس وقت اجالا پھوٹ رہا تھا جب ٹرین راجہ نگر کے چھوٹے سے اسٹیشن پر رکی اور میں اپنے مختصر سے سامان کا تھیلا اٹھائے نیچے اتر گیا۔ ماحول سویا سویا تھا۔ میں نے ایک نگاہ چاروں طرف ڈالی اور کچھ دوسرے مسافر بھی نیچے اتر رہے تھے۔ فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ کے پاس کچھ لوگ کسی عمر رسیدہ شخص کو نیچے اتار رہے تھے۔ دفتن کسی نے پیچھے سے میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا اور ساتھ ہی ایک چیختی ہوئی سی نسوانی آواز سنائی دی، طاہر۔ میں نے چونک کر پیچھے گردن گھمائی۔ ایک پروکار سی عمر رسیدہ عورت تھی اور اس نے مضبوطی سے میرا کندھا پکڑ لیا۔ میں صرف تمہارے لیے اسٹیشن آئی تھی۔ آپ کون ہیں؟ اور میں نے کسی قدر پریشانی سے پوچھا۔ میرے ساتھ آؤ۔ میں نے بتایا نا کہ میں صرف تمہارے لیے اسٹیشن آئی تھی، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ گنگوتری نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ ضرورت پڑنے پر مجھ سے زیادہ دور نہیں ہوگا، اور اس کے علاوہ اس نے مجھے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ راجہ نگر میں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اس لیے میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا اور عورت کے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گیا۔ وہ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئی جو کمپارٹمنٹ سے ایک عمر رسیدہ شخص کو نیچے اتار رہے تھے۔ دبلے پتلے بدن کے مالک اس شخص کی عمر 80 سال کے لگ بھگ ہوگی اور اس کا چہرے پر بڑا نور نظر آیا۔ عورت نے سرگوشی میں کہا، یہی بابا گل نیاز ہیں۔ کون؟ میں نے چونک کر کہا اور عورت نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ تم نہیں جانتے؟ سنو، تم میری طرف سے کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئی ہو۔ کیوں؟ وہ بولی، اور تم نے مجھے طاہر کہہ کر پکارا ہے۔ اوہو، خاموش ہو جاؤ، تمہیں بتا دوں گی۔ چلو خاموشی سے میرے ساتھ چل پڑو۔ وہ اسٹیشن سے باہر نکل رہے تھے، عورت نے کہا اور قدم آگے بڑھا دیے۔ بڑا پر اسرار انداز تھا۔ میری وہی کیفیت تھی۔ گنگوتری نے مجھے کوئی تفصیل تو بتائی نہیں تھی، چنانچہ جو ہو رہا تھا اور جیسے ہو رہا تھا اسے جاری رہنے دیا گیا۔ چنانچہ میں بھی ان کے ساتھ باہر نکل آیا۔ کئی قیمتی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی۔ بابا گل نیاز کو ایک شاندار گاڑی میں بٹھایا گیا اور دوسرے لوگ دوسری گاڑیوں میں بیٹھنے لگے۔ عورت میرے پاس آئی اور بولی، تمہارا نام طاہر ہے اور تم بستی مدد گڑی سے یہاں آئے ہو؟ جی، کیوں آیا ہوں؟ نوکری کرنے۔ تمہیں نوکری مل گئی ہے؟ کس نے دلائی ہے؟ میرا نام سعیدہ باجی ہے، یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی اور خود دوسری گاڑی میں بیٹھ گئی۔ بہت بڑے لوگ معلوم ہوتے تھے اور یہ بابا گل نیاز ان کے لیے بڑی حیثیت رکھتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اس گھر کے سب سے بڑے بزرگ ہوں۔ کئی ملازم بھی ساتھ آئے اور جو ایک بڑی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ میں بھی اسی گاڑی میں چڑھ گیا۔ شبان نامی ایک ملازم نے میری طرف توجہ دی۔ تم مدد گڑی سے آئے ہو؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ اور سعیدہ باجی کے بندے ہو؟ ہاں، میرا نام شابان ہے۔ سب مجھے شابو کہتے ہیں، میں تمہارا بندوبست کر دوں گا۔ جی شابو بھائی، مجھے اطمینان ہوا۔ گاڑی ایک حویلی میں داخل ہو گئی۔ بس حویلی کیا، محل تھا پورا، اور دنیا میں انسانوں کے پاس نہ جانے کیا کیا ہے۔
देने वाले की देन है और इंसान इसके बारे में क्या जाने। सब लोग हवेली में उतर गए तो सईदा बाजी भी ख़ास तौर पर शाबान की ही के पास आई थी। दूसरी बात एक और थी और वो ये कि सईदा बाजी भी मुझे बहुत गौर से देखती रहती थी और उसकी आंखों में एक मैनी खेज चमक होती थी। फिर एक वाक़या हो ही गया और मैं किसी काम से बाबा नियाज़ के कमरे में गया था। ज़ोहर की नमाज का वक़्त था। बाबा साहब नमाज के लिए तैयार थे। एकदम बोल पड़े, ताहर। और पहली बार वो बराह रास्त मुझसे मुखातिब हुए थे। जी बाबा साहब, इधर आओ, उन्होंने कहा और मैं उनके पास पहुंच गया। मुझे उस कुर्सी पर बिठा दो, आज पाँव बिल्कुल साथ नहीं दे रहे, बैठ कर नमाज पढ़ूंगा। जी बाबा साहब, मैंने कहा और बड़े एहतराम से कुर्सी उठाकर उस जगह रखी जहां बाबा साहब ने कहा था और फिर उन्हें उस कुर्सी पर बैठने में मदद दी तो वो बोले, किसी में काम में मसरूफ़ तो नहीं हो? नहीं बाबा साहब। तब एक तकलीफ़ करो, फरमाइए। एक साफ़ सुथरे गिलास में पानी ले आओ, गिलास अच्छी तरह धो लेना। मैं नमाज शुरू कर रहा हूँ, पानी लाकर मेरे पास रखना, समझ गए? जी बाबा साहब, मैंने कहा और उनकी हदायत पर अमल किया। बाबा साहब का किसी काम के लिए कह देना तो बड़ी खुशकिस्मती थी। घर का हर फर्द उनके कामों के लिए तैयार रहता था। मैं उनसे कुछ फासले पर खड़ा हो गया। नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने गिलास मुझसे मांगा तो मैंने पानी का गिलास उनकी तरफ बढ़ा दिया और उन्होंने गिलास हाथ में ले लिया और उस पर कुछ पढ़ते रहे। फिर गिलास मेरी तरफ बढ़ा कर बोले, पी लो। मैं घबरा गया, ये गैर मुतवक्का था। मैंने गिलास में हाथ में ले लिया लेकिन पानी नहीं पिया। सुना नहीं तुमने, इसे पी लो। और इस बार उनकी आवाज़ में बादलों जैसी गरज थी और मैंने बादल नाखवास्ता गिलास होंठों से लगाकर खाली कर दिया। वो खामोशी से मुझे देखते रहे, फिर बोले, मुझे बिस्तर पर पहुंचा दो। जी, मैंने कहा और उनकी हदायत पर अमल किया। कुर्सी रखकर मेरे पास बैठो, मैं आपके सामने बैठ नहीं सकता जबकि तुम जानते हो कि तुम वो नहीं हो जिस हैसियत से यहाँ हो। बाबा साहब बोले, जी, और मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। मैंने सहमी हुई नज़रों से बाबा साहब को देखा लेकिन उनकी आंखें बंद थी। लग रहा था कि जैसे वो किसी नए ही जहान में हों। क्या नाम है तुम्हारा? उन्होंने आंखें बंद किए हुए पूछा। ताहर। ताहर? नहीं, तुम ताहर नहीं हो, तुम श्याम सुंदर भी नहीं हो, बल्कि तुम एक खुश नसीब इंसान हो। मेरे बदन पर लज़्ज़त तारी हो गई। बाबा साहब ने मेरा दूसरा नाम भी लिया था लेकिन एक बात मैं जानता था कि मेरा नाम श्याम सुंदर भी नहीं है। बाबा साहब, मेरे मुंह से निकला, हाँ, तुम्हारा नाम गुम हो गया है, उसे भी तुम रहने दो। मैंने तुम्हें खुश नसीब इसलिए कहा है कि कहीं भी किसी भी जगह तुम्हारी कोई गलती नज़र नहीं आई, कोई लालच, कोई तलब तुम्हें उस मंजिल तक नहीं लाई। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कोई कर रहा है, जाओ। बाबा साहब, मैंने कुछ कहना चाहा। जाओ, बाबा साहब बोले और इतनी देर में घर के कुछ लोग अंदर आ गए थे। मैं सर झुकाए बाहर निकल गया लेकिन मेरे पूरे बदन में लर्ज़िशें तारी थी। ये बाबा साहब तो कोई बहुत बड़ी चीज़ थे और उन्होंने श्याम सुंदर कहकर पुकारा था। अपने क्वार्टर में आकर मैं बेसुध लेट गया। आज मेरी कैफियत बहुत ख़राब थी, सारे बदन में सनाटे दौड़ रहे थे। शाम हुई, फिर रात हो गई और उस वक़्त कोई 8 बजे होंगे जब दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? मैंने आवाज़ पर काबू पाकर पूछा। सईदा हूँ, क्या कर रहे हो अंदर? मैं जल्दी से उठकर बाहर निकल आया। बीमार हो गया? सईदा बाजी ने हमदर्दी से पूछा। नहीं। फिर क्यों लेटे हो? आओ जूते पहन लो, उन्होंने नरम लहजे में कहा और मैंने जल्दी से जूते पहन लिए। फिर मैं बाहर चल पड़ा लेकिन सईदा बाजी उस हवेली के बड़े गेट से बाहर निकल गई थी। इसका मतलब है कि वो कहीं और ही जा रही हैं। हमें काफ़ी दूर तक चलना पड़ा। मैं इस इलाके के बारे में कुछ नहीं जानता था। जिस इमारत में सईदा बाजी मुझे लेकर गई वो खंडर नुमा थी और वो एक बड़े हाल में पहुंच गई। फिर बोली, यहाँ आराम करो। यहाँ? मैंने हैरत से कहा लेकिन सईदा बाजी ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और ख़ामोशी से हाल से बाहर निकल गई। कोई गड़बड़ हो गई थी, बहुत बड़ी गड़बड़ अंदाज़ा हो रहा था। लेकिन क्या गड़बड़? सिर्फ एक ही हो सकती थी, बाबा नियाज़ से मुलाकात। ना जाने कितनी देर उस हाल के फर्श पर बैठा रहा। फिर मैंने सोचा कि बाहर निकल कर तो देखूं ये सब क्या मुसीबत है और मेरा होगा क्या। रात खूब गहरी हो चुकी थी, हर तरफ अंधेरे का राज था। मैं हाल के दरवाजे से बाहर निकल आया। बाहर एक वसी सहन था।
सहन के दूसरे हिस्से में एक दरवाज़ा सा नज़र आया। मैं सूरत हाल जानने के लिए उस दरवाजे की तरफ बढ़ गया और फिर मैंने दरवाज़ा खोला। अंदर से रोशनी की लकीर बाहर निकल आई। अंदर कोई था। मैं धड़कते दिल को संभाल कर अंदर दाखिल हो गया। कौन है यहाँ? मैंने आवाज़ लगाई तो कुछ खुसर फुसर बड़ी सुनाई दी। यहाँ कौन है? मैंने दोबारा आवाज़ लगाई। मैं एक मिनमिनी सी नस्वानी आवाज़ उभरी। कौन हो तुम? कहाँ हो? मैंने पुकारा और जवाब में उस दूसरे बड़े हाल के गोशे में फिर खड़बड़ सुनाई दी। फिर कुछ लोहे की जंजीरें खड़कने की आवाज़ उभरी। मैं यहाँ हूँ। क्या तुम में जंजीरों से बांधा गया है? हाँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैंने कहा और उस तरफ बढ़ गया। उस गोशे में एक उम्र रसीदा औरत दीवार से टेक लगाए बैठी थी, लेकिन उसकी सूरत देखकर मैं चौंक पड़ा। बेख्तियार मेरे मुंह से निकला, सईदा बाजी। और औरत ने भी हैरानी से कहा और मुझे घूर घूर कर देखने लगी। ये क्या हुआ आपको? कौन हो तुम? सईदा बाजी की आवाज़ उभरी। ताहर। कौन ताहर? अरे आप। और मेरे मुंह से सख्त हैरत के आलम में निकला और मैं आंखें फाड़ फाड़ कर उन्हें देखने लगा। मुझे एकदम एहसास हुआ कि इन सईदा बाजी में और दूसरी में कुछ फ़र्क है। मैंने कहा कि आप मुझे नहीं जानती सईदा बाजी? नहीं। आप यहाँ कब से बंदी हैं? 10 दिन हो गए। आप हवेली में काम करती हैं ना? हाँ। और वो कौन लोग हैं जिन्होंने आपको बांधा है? मैं नहीं जानती, लेकिन एक और औरत ने मेरी जगह ले ली और वो हूबहू मेरी हम शक्ल थी। और फिर उसने मुझे बेहोश कर दिया और फिर मुझे यहाँ होश आया और उन्होंने मुझे बांध कर यहाँ रखा। मैं सोच में डूब गया और कुछ अरसा कबल ज़हनी क़ुव्वतें साथ छोड़ गई थी। मैं एक तरह दुनिया से बेखबर हो गया था, लेकिन अब कभी कभी मेरे जहन में ना जाने कैसे कैसे नकूश नुमायाँ होने लगे थे। कोई भूली हुई कहानी दिमाग में कुलबुलाने लगी और बस उसकी कोई वाज़ेह शक्ल नहीं बनती थी। और फिर बाबा गुल नियाज़, उनके अल्फाज, तुम ताहर नहीं हो, तुम श्याम सुंदर भी नहीं हो, तुम एक खुश नसीब इंसान हो। तीसरा नाम गुम हो गया है। क्या है मेरा तीसरा नाम? क्यों गुम हो गया है? और उसी तीसरे नाम में मेरी कहानी खो गई है। मैं सोच ही रहा था कि बंधी हुई औरत ने कहा, मगर तुम कौन हो? और मैं चौंक पड़ा। क्या तुम उनके साथी नहीं हो? उसने सवाल किया। नहीं, मैंने कहा और उसी वक़्त पूरे हाल में तेज़ रोशनी फैल गई। मैं उछल पड़ा था और उस रोशनी में मुझे 2 इंसान नज़र आए, वाज़ेह और शनासा। एक गंगोत्री था और दूसरी सईदा बाजी। दोनों अपनी जगह खामोश खड़े हमें देख रहे थे। और तुमने ऐसा क्यों किया श्याम सुंदर? गंगोत्री ने कहा और आगे बढ़ाया और उसके अंदाज में नरमी थी, लेकिन मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। ये नरोका है, नरोका सिद्धू, जिसने सईदा का रूप अपनाया था सिर्फ तुम्हारे लिए। और वह फिर बोला और इस बार उसने साथ खड़ी औरत, जो सईदा बाजी नहीं थी, के बाल पकड़े और उसके चेहरे से एक नकाब सी खींच दी। एक बेहद मकरू चेहरा नुमायाँ हो गया था। हमें वहाँ तुमसे काम था, बहुत ज़रूरी काम। लेकिन मैं कौन हूँ? और मेरे मुंह से सर्द आवाज़ निकली, एक बदनसीब इंसान, गंगोत्री ने कहा। और मैं बेइख्तियार हंस पड़ा। उन दोनों को मेरी इस बेमौका हंसी पर हैरत हुई। तुम हंस रहे हो? गंगोत्री बोला। हाँ। क्यों? इसलिए कि बाबा नियाज़ मुझे खुश नसीब कह रहा था और तुम बदनसीब कह रहे हो। खुश नसीब असल में बाबा गुल नियाज़ है। वो क्यों? मैंने दिलचस्पी से पूछा। मैं खुद भी अपने आप पर हैरान था। जो माहौल और जो हालात मेरे सामने थे, उन पर मुझे खौफज़दा होना चाहिए था, लेकिन मैं बिल्कुल निडर था। और इस वक्त मेरे दिल में खौफ की कोई कैफियत नहीं थी और मैं पुरसकून था। खुशनसीब बाबा गुल नियाज़ है कि उस बड़े जाल से भी बच गया। बड़े जाल से? हाँ, हमारी उससे पुरानी दुश्मनी है। उसने हम पर कई वार किए हैं, लेकिन हमने तुम्हारे ज़रिए उस पर जो वार करने का मंसूबा बनाया था, वो उसके लिए बहुत ख़तरनाक साबित होता और वह एक सूखे हुए मकड़े की शक्ल इख्तियार कर जाता। ऐसा होने वाला था कि तुम गद्दारी कर गए। मैंने गद्दारी की 100%, जबकि मैं बाबा गुल नियाज़ की बात से मुतफिक हूँ कि मैं खुश नसीब हूँ कि एक बुज़ुर्ग को मेरे हाथों नुकसान नहीं पहुँचा। मगर तुम मुझे बदनसीब क्यों कह रहे हो? इसलिए कि मुस्तकबल में श्याम सुंदर बहुत बड़ा नाम होता, एक अरबपति सेठ, एक बहुत बड़ा कारोबारी जिसकी दौलत सारी दुनिया में फैली होती। ओहो, और अब क्या होगा? इसका फैसला रासमनी करेगी। चल तू इस औरत के साथ इस समय। रासमनी से तेरे बारे में जो हुक्म मिला, हमें वही करना होगा। चल रही, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। और उसने साथ खड़ी मनहूस शक्ल औरत से कहा और दोनों बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ मुड़ गए।
मैं खामोशी से उन्हें जाते देखता रहा और उसी वक्त मुझे सईदा बाजी की आवाज़ सुनाई दी। मैं तुझे किस नाम से पुकारूं बेटा? नाम ही तो खो गया है माँ जी, मेरे हलक से भराई हुई आवाज़ निकली। मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा, मैं तुझे ताहर ही कहूँगी। सईदा बाजी ने कहा, जो आपका दिल चाहे कहें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तू कौन है बेटा, मुझे अपने बारे में बता। नहीं सईदा बाजी, मेरे दिलो दिमाग काबू में नहीं है। मैं आपकी ये जंजीरें खोल देता हूँ। रात गुजर जाए, सुबह को सोचेंगे कि हमें क्या करना है। अच्छा ठीक है, खातून ने बेचारगी से कहा। मैंने पूरी कोशिश करके उनकी जंजीरें खोल दी और उस वक़्त पूरा बदन फोड़े की तरह दुख रहा था। दिमाग की कैफियत भी उससे मुख्तलिफ नहीं थी। मैं थोड़े फासले पर जा लेटा, लेकिन सईदा बाजी मेरे करीब खिसक आईं। थोड़ी सी बातें तो कर मुझसे ताहर। उनके लहजे में ऐसी आर्जी थी कि मुझे उन पर प्यार आ गया। जी सईदा बाजी, जगह कौन सी है? मैं नहीं जानता, बस एक ये खंडर है। मैं हवेली कैसे जाऊंगी? कल की दिल की रोशनी में हवेली तलाश करेंगे। तू मेरी मदद करेगा? हाँ क्यों नहीं। वैसे सईदा बाजी, ये बाबा गुल नियाज कौन हैं? दरवेश हैं, अल्लाह वाले हैं। हवेली में सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं। सईदा बाजी से कोई ख़ास बात नहीं मालूम हो सकी। मैंने आंखें बंद कर लीं। दिमाग में सोचने समझने की कुव्वतें ही ख़त्म हो गई थी। फिर नींद आ गई। न जाने कब सुबह हुई और सुबह भी ऐसे हुई कि कमर पर ठोकर पड़ी और एक आवाज़ सुनाई दी, क्यों बे सो रहा? मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। दो पुलिस वाले खड़े मुझे खश्मनाक नज़रों से घूर रहे थे। मैं हक्का बक्का रह गया और मैंने फटी फटी आंखों से चारों तरफ देखा। वहाँ कोई खंडर था ना इमारत, एक पार्क था जिसमें दरख्त झूल रहे थे। बाहर लगा बोर्ड नहीं देखा, एक पुलिस वाले ने कहा। बोर्ड और मेरे मुंह से निकला, जिस पर लिखा है कि पार्क में सोना मना है। माफ़ी चाहता हूँ अफसर जी, गलती हो गई, मैंने बोर्ड नहीं देखा। मेरा अफसर जी कहना काम आ गया और पुलिस वाले नरम हो गए। चलो भागो यहाँ से, पार्कों में सोना मना है। चोर लटेरे वारदातें करके पार्कों में आकर सो जाते हैं। दोनों पुलिस वाले आगे बढ़ गए और मैंने भी फौरी तौर पर वहाँ से हट जाना मुनासिब समझा। उन्होंने दोबारा मुझे यहाँ देख लिया तो चिढ़ जाएंगे और पुलिस से वैसे ही मेरी जान निकलती थी। लेकिन अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? और अल्लाह के भरोसे पर चल पड़ा। ज़्यादा दूर नहीं गया था कि रेलवे स्टेशन नज़र आ गया। कदम उसी तरफ बढ़ गए। रेलवे प्लेटफार्म पर स्टॉल लगे हुए थे। एक स्टॉल से चाय और 2 केक पीस खरीदे। शुक्र है कि मेरी जेब से पैसे गायब नहीं हुए थे। थोड़ी सी शिकमसेरी के बाद एक तरफ जा बैठा और फिर अपने बारे में सोचा, कौन हूँ मैं, कितने नाम हैं मेरे, और जो मेरे ऊपर तसल्लुत जमाए हुए हैं वो कौन हैं और वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, और पता नहीं बेचारी सईदा बाजी का क्या हुआ। और मुझे सारे वाक़यात याद आ गए। मुझे पुरइसरार तरीके से उस खंडर से पार्क में मुंतकिल कर दिया गया। इसका मतलब था कि वो लोग मुझे ख़त्म नहीं करना चाहते, वरना उस खंडर से तो मेरी लाश भी दस्तयाब ना होती। अरे होंगे कोई जहन्नम में जाएं, अब क्या करूं? और दूर से एक मुसाफिर ट्रेन आती नजर आई और मेरे ज़हन में एक ख्याल आया, क्यों ना ट्रेन में बैठ जाऊं और जहां भी जा रही है जाए, इस जहन्नम से तो फरार हासिल करूं। और ये ख्याल दिल में जड़ पकड़ गया। नीम दीवानगी तो ज़हन पर सवार थी। ट्रेन पर मुसाफिर उतरने चढ़ने लगे और मैं भी एक जगह से उठा और एक कंपार्टमेंट में घुस गया। ये भी गौर नहीं किया कि फर्स्ट क्लास का डब्बा है, एयर कंडीशन है और उसमें लोग ना होने के बराबर थे। मैंने किसी पर गौर ही नहीं किया था और एक गोशे में जा बैठा। उस वक़्त मुझे ये भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरा हुलिया फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट का नहीं था। कुछ देर के बाद ट्रेन चल पड़ी और मैंने आंखें बंद कर लीं। न जाने कितनी देर उसी तरह गुजर गई और फिर आंखें खोलीं तो सामने नज़र पड़ी। एक सादा सा पुरवकार चेहरा मेरे ऐन सामने था। खूबसूरत नकूश वाली एक तकरीबन 20 साला खातून थीं, जिनकी आंखें बेहद खूबसूरत थी और वो आंखें मुझे ही देख रही थी और मैंने उन पर से निगाह हटा ली। गालबन किसी मुसाफिर ने मेरा हुलिया देखकर मेरे बारे में शिकायत कर दी थी, क्योंकि कुछ ही लम्हों के बाद एक रेलवे अफसर 2 पुलिस वालों के साथ मेरे पास आ गया। आपका टिकट, अफसर ने कहा। और इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, सामने वाली लड़की जल्दी से बोली, माजरत ख्वाह हूँ ऑफिसर, ये मेरे साथ है। जी, अफसर हैरत से बोला।
आप इनके हुलिये पर ना जाइए, इन्हें मेरे साथ जाना था। इंतहाई एमरजेंसी में ये आए और ट्रेन में मेरे पास आ गए। आप इनका टिकट बना दें, जितना जुर्माना चाहे लगा दें। लड़की या खातून ने अपना पर्स निकाल लिया। टिकट बन गया और अफसर चले गए तो खातून ने कहा, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। जी, मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ये पैसे आपको देना चाहता हूँ। दर हकीकत में आप पैसे मुझे दीजिए, लेकिन मुझे बातें करने की इजाज़त तो दें। उसने मुस्कुराकर कहा, जी आप अपना नाम बताएंगी? वो बोली, नाम? मेरा नाम? मैं रुका, क्या नाम बताऊं? ताहर, श्याम सुंदर। मैं बताऊं? वो मुस्कुराकर बोली, आपका नाम ज़ीशान अली है। एक भयानक धमाका हुआ। मुझे यूं लगा कि जैसे ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया हो, पूरी ट्रेन तबाह हो गई हो। खौफनाक धमाके मुसलसल होते रहे। लड़की के चेहरे पर तशवीश के आसार उभर आए और उसने मेरा चेहरा देखा। फिर झुक कर अपनी सीट के नीचे से एक बैग निकाला और उसमें से कुछ चीज़ें निकालने लगी। गालबन वो मेडिकल बॉक्स था। कहने लगी, प्लीज़ मैं आपको इंजेक्शन लगाना चाहती हूँ, आपका चेहरा सफ़ेद पड़ गया है, प्लीज़। मैंने इतराज़ नहीं किया। इंजेक्शन ने मुझे सुकून दिया था और कुछ देर के बाद मेरी हालत बेहतर हो गई। लेकिन वो नाम मेरे कानों में गूंज रहा था, ज़ीशान अली। हाँ, ज़ीशान अली, यही तो मेरा नाम है। मैं ना ताहर हूँ ना श्याम सुंदर, मैं ज़ीशान अली हूँ, एक मुसन्नफ़। कैसी तबीयत है? वो बोली, ठीक हूँ, मेरा नाम सना नाज है, डॉक्टर हूँ। आपने मुझ पर एहसान किया है। मैंने कहा, मेरी उम्र इस वक्त 30 साल है, लेकिन मैं 10 साल से आपको पढ़ रही हूँ। इन 10 सालों में हमेशा मेरे दिल में आरज़ू रही कि मैं ज़िंदगी में एक बार आपसे ज़रूर मिलूँ। बस कुछ ख्वाहिशें इतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन पूरी नहीं होती। और आज मैं उसे देखता रहा। फिर मैंने कहा, क्या आप पूरे वसूख से कह सकती हैं कि मैं ज़ीशान अली हूँ? हाँ, उसने पथरीले लहजे में कहा। क्यों? क्या कहूँ आपसे? आपको ये एतमाद क्यों है? बहुत सी बातें इंसान के अंदर होती हैं और उन्हें अंदर ही रहना चाहिए। किताबों की एक नुमाइश में मैं सिर्फ चंद मिनट लेट हो गई और उस वक़्त आप वहाँ से जा चुके थे। डॉक्टर सना, मेरे बारे में कुछ और भी मालूम है आपको? बहुत कुछ। आप जिन पुरअसरार हालात का शिकार हुए थे, उनकी तफसील अखबारात में भी आती रही है और आपकी तस्वीरें भी छपती रही हैं और आपसे मुतल्लक़ खबरें अखबारात की ज़ीनत बनी रहीं। ओहो, मैंने कहा और मुझे वाकई सब कुछ याद आ गया। मैं ज़ीशान अली हूँ, एक राइटर, कहानियाँ लिखता था और फिर ज़िंदा सदियाँ शुरू की। मैं तारीख को अपनी आंखों से देखकर उसके बारे में लिख रहा था कि मुझे वो 2 मनहूस किरदार मिल गए और सब कुछ ही बदल गया। मेरा ख्याल है कि आपको बाद के हालात मालूम नहीं। बाद के हालात? हाँ, वो क्या हैं? ज़रूर ऐसी ही बात है। आप इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं? मुझ पर बहुत बुरा वक्त बीता है डॉक्टर सना। मैं तिलस्मी जाल में फंसा रहा हूँ और आपकी याददाश्त भी मुतासर हुई थी। हाँ, लेकिन मुझे बाद के वाक़यात के बारे में बताइए। अखबारात पत्थर की एक किताब का तज़किरा करते हैं, एक तिलस्मी किताब का, और पत्थर की उस किताब में कब्रों जैसे तावीज़ उभरे हुए हैं और उन तावीज़ों में सदियां छुपी हुई हैं। ठीक। और उसी किताब में महकमा पुलिस के कमिश्नर और उनके एक साथी गुम हो गए थे। उन्हें मुर्दा तस्वर कर लिया गया, लेकिन एक दिन वो उस किताब से नमूदार हो गए और उन्होंने अपने बारे में तफसील बताई। वहीं से उन्हें करोती और गौतम भंसाली के बारे में मालूम हुआ और पता चला कि ज़ीशान अली बेकसूर है। जो कुछ हुआ तारीख के उन 2 पुरअसरार किरदारों की वजह से हुआ। डॉक्टर सना बोल रही थी और मेरे रगो-वपे में मुसर्रत की लहरें दौड़ रही थी। मेरे ऊपर से इल्ज़ामात हट गए थे और मुझे बेकसूर करार दे दिया गया था। मैंने आंखें बंद कर लीं और डॉक्टर सना मेरे बारे में जो कुछ बता रही थी, उसके मिटे मिटे नकूश मेरी आंखों में उभरते आ रहे थे और मुझे सब कुछ याद आता जा रहा था। अपना घर, करोती, गौतम भंसाली और अपने सारे मशागल। डॉक्टर सना मुझे गौर से देख रही थी और फिर उसने कहा कि आपको याद आ गया ज़ीशान अली? काफ़ी हद तक। मुझे खुशी है कि अब आप कहाँ जा रहे थे। यकीन करें, मैं नहीं जानता। मुझे अंदाज़ा है और मैं आपसे मिलकर सख्त हैरान हूँ। मैंने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी तहरीरों के शहर में जकड़ लेने वाला नावल निगार इस तरह मुझे मिल जाएगा, और वो भी खुद शहर में जकड़ा हुआ। और वैसे करोती की कहानी दुरुस्त है ना? हाँ। अब वो कहाँ है? आप मुझसे पूछ रही हैं, क्या मतलब? मैं खुद अपने आप से बेखबर हो गया था और मुझे उसकी क्या खबर, बल्कि मैं तो ये मालूम करना चाहता था कि जब उसके बारे में हुकूमत को ये पता चल गया कि वह मुजरिम है और मैं बेकसूर,
اس کا شکار تو اس نے اس کے لیے کیا کیا؟ وہی جو حکومت کرتی ہے، ثنا تلخی سے بولی۔ مطلب ایسی خبروں کی مزید تشہیر سے اخبارات اور میڈیا کو روک دیا جاتا ہے۔ بلا حکومت کے پاس ایسے کیا ذرائع تھے کہ وہ انہیں تلاش کر کے گرفتار کرتی؟ چنانچہ خاموشی اختیار کر لے گی اور میرے بارے میں کوئی خبر چھپی؟ ہاں، ہمدردی کا اظہار کیا گیا، کہا گیا کہ کروتی نے اپنے دشمن کو بھی ہلاک کر دیا ہوگا۔ ڈاکٹر ثنا نے بتایا۔ دشمن؟ آپ کے بارے میں لکھا جاتا ہے، ثنا بولی۔ میں خاموش ہو گیا۔ ڈاکٹر ثنا بھی کسی سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ اچانک اس نے چونک کر پوچھا، آپ کو اپنا ماضی یاد آ گیا؟ ہاں ڈاکٹر ثنا، کسی حد تک، خدا کا شکر ہے۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی اور پھر کسی سوچ میں گم ہو گئی۔ ماحول پر ایک اداسی سی طاری ہو گئی اور ویسے بھی ہر طرف خاموشی مسلط ہو گئی تھی۔ میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ حالانکہ دماغ میں بہت سے خیالات تھے، لیکن نیند ان پر غالب آ گئی۔ ٹرین کی گڑگڑاہٹ نے لوری کی سی کیفیت پیدا کر دی اور میری نیند گہری ہوتی گئی۔ لیکن پھر ایک عجیب سا وحشت ناک احساس ہوا اور میں نے خود کو ایک سناٹے کے سے عالم میں محسوس کیا، اور مجھے یوں لگا جیسے میں ایک بڑے سے کمرے میں ہوں۔ کمرے میں چھت کے قریب بہت بڑا روشن دان ہے اور اس روشن دان کی دوسری طرف سے چاند جھانک رہا ہے۔ اچانک مجھے یوں لگا کہ جیسے روشنی کی کرنیں سفید سفید چہروں کا روپ دھارتی جا رہی ہیں، اور میں انہیں غور سے دیکھا۔ یہ بھیانک چہرے انسانی کھوپڑیاں تھیں جن کے جبڑے ہل رہے تھے، آنکھیں سرخ تھیں اور ان سے شعاعیں پھوٹ رہی تھی۔ ہلتے ہوئے جبڑوں سے کچھ آوازیں بھی نکلی جو بنبناہٹ جیسی تھی اور سمجھ میں نہیں آئیں، لیکن منظر اتنا خوفناک تھا کہ میرا بدن تھر تھر کانپنے لگا۔ پھر منظر تبدیل ہو گیا۔ روشن دان سے اندر آنے والی کھوپڑیوں نے دروازے کھڑکیوں کو کھانا شروع کر دیا اور وہ چاروں طرف پھیل گئیں، اور جو چیز ان کے سامنے آتی گئی اسے کھاتی گئیں، اور دیواروں پر لگے ہوئے پردے، کمرے میں پڑا دوسرا فرنیچر، یہاں تک کہ وہ میری مسحری کے پاس آ گئیں اور انہوں نے اس کے پائے کھانے شروع کر دیے، اور پھر وہ میرے جسم پر حملہ آور ہوئی۔ انہوں نے میرے جسم کو کاٹنا شروع کر دیا۔ میں نے مسحری سے نیچے چھلانگ لگا دی اور اسی وقت مسحری کا ایک پایا میرے ہاتھ آ گیا جو انہوں نے کاٹ کر مسحری سے جدا کر دیا تھا۔ میں نے جھک کر پایا اٹھایا اور ان کھوپڑیوں پر حملہ کر دیا۔ میرے ہر وار پر کھوپڑیوں کے پرخچے اڑ جاتے۔ اچانک مجھے ایک سکوت کا احساس ہوا، جیسے ہر چیز ساکت ہو گئی۔ ایک وحشت ناک سناٹا چاروں طرف پھیل گیا اور میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے ٹرین کی وسل سنائی دی اور وہ بھیانک منظر میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ آہ، کیا بھیانک خواب تھا! میرے پورے بدن میں جیسے آگ لگ رہی تھی۔ بے اختیار دل چاہ رہا تھا کہ خود کو پانی میں ڈبو دوں۔ میں نے باہر جھانک کر دیکھا، کوئی چھوٹا سا اسٹیشن تھا، لیکن دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا، البتہ کہیں مدم مدم روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ ایک جگہ پانی کا نلکا لگا ہوا تھا۔ دل بے اختیار ہو گیا اور شدت سے خواہش ہوئی کہ منہ دھوؤں اور زیادہ سے زیادہ پانی خود پر بہا دوں۔ اپنی جگہ سے اٹھا اور نیچے اتر گیا۔ نلکا کافی دور لگا ہوا تھا اور میں اس کی طرف چل پڑا۔ ابھی اکڑوں بیٹھ کر پانی کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک ٹرین کی وسل دوبارہ سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی وہ رینگنے لگی۔ میرے اوسان خطا ہو گئے۔ ٹرین کی جس وسل پر میری آنکھ کھلی تھی وہ اس کی روانگی کی پہلی وسل تھی، اور دوسری وسل دے کر وہ چل پڑی۔ چھوٹا اسٹیشن تھا اور یہاں اس کے زیادہ دیر رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ فیصلہ نہیں کر پایا کہ اب کیا کروں۔ بادل ناخواستہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹرین کی طرف بھاگا، لیکن فاصلہ اتنا تھا کہ اس تک پہنچنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ ریلوے لائن تک پہنچا بھی نہیں تھا کہ آخری ڈبہ بھی دور نکل چکا تھا۔ واہ، کیا بات ہے ذیشان علی، میں نے دل میں سوچا، لیکن اس سوچ نے ایک دم دل کو خوشی بخشی تھی۔ اور میں ذیشان علی ہوں، نہ میں شام سندر ہوں نہ طاہر۔ ذیشان علی ایک شریف انسان، شریف شہری، اور میری پوزیشن صاف ہو چکی تھی۔ میں کروتی کے جرائم کا شریک کار نہیں ہوں، حکومت یہ بات جان چکی ہے۔ اب میں ایک آزاد انسان کی حیثیت سے رہ سکتا ہوں۔ ٹرین کا اب نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ہاں، کچھ فاصلے پر ایک سڑک ضرور نظر آئی، اور جس پر اس وقت بھی 2 ٹرک آگے پیچھے گزر رہے تھے۔ سڑک تک جانے کے لیے تھوڑا سا ناہموار راستہ عبور کرنا تھا۔ کیا کروں، کیا نہ کروں؟ اسٹیشن کسی بھوت گھر کا منظر پیش کر رہا تھا۔ کسی آدم ذات کا نشان تک نہیں تھا، اور میں نے سڑک پر ہی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ تک پتہ نہیں تھا کہ یہ سڑک کہاں جا کر
कौन से शहर पर ख़त्म होती है। आखिरकार मैं सड़क पर पहुंच गया और फिर उसी तरफ चल पड़ा जिधर ट्रेन गई थी। कुछ बेख्याली का आलम था, कुछ सोचे दामन गई थी। अब क्या करना है, कैसे आगे वक्त गुजारना है। और सड़क के किनारे चलता रहा और वो शहर पीछे रह गया जहाँ नीचे उतरा था। फिर काफ़ी दूर रोशनियाँ नज़र आईं। पता नहीं था कि शायद कोई पेट्रोल पंप था। इस दौरान कई गाड़ियाँ, ट्रक वगैरह भी गुजरे, लेकिन ना मैंने उन पर तवज्जो दी और ना उन्होंने मुझ पर। ये सफ़र भी ख़त्म हो गया। वो पेट्रोल पंप नहीं, एक फैंसी रेस्टोरेंट था जिसमें तेज़ रोशनियाँ हो रही थीं। बाहर 2 कीमती कारें भी खड़ी हुई थी। मैंने जेब का जायज़ा लिया और अंदर दाखिल हो गया। बेहद नफीस हाल था। इक्का दुक्का लोग बैठे हुए थे जिनके सामने बर्तन सजे हुए थे। मैंने वेटर को कॉफ़ी वगैरह लाने के लिए कहा और कुर्सी से पुश्त टिका ली। वेटर ने काफ़ी लवाजमात लाकर मेरे सामने लगा दिए और मैं काफ़ी पीने लगा। अचानक सामने वाली मेज़ से एक औरत इस तरह उठी कि उसकी कुर्सी लड़क गई थी। तेज़ आवाज़ पर मैंने चौंक कर उधर देखा। असूली तौर पर मेरी मेज़ उलट जानी चाहिए थी, लेकिन मैं बस पथरा कर रह गया। औरत ने झुक कर अपने साथ बैठे मर्द से कुछ कहा और वो भी पलट कर मुझे देखने लगा। तब मैंने खूब गौर से उन्हें देखा। वो कुरोती और गौतम भंसाली थे। कुरोती एक इंतहाई पुरवकार और खूबसूरत लिबास में मलबूस थी और गौतम भंसाली एक जदीद सूट पहने हुए था। ये अलग बात थी कि उसकी सूरत वही की वही थी और कोबड़ भी जूं का तू था। दोनों अपनी जगह मुझे देखते रहे और फिर आपस में कोई बात की और उसके बाद दोनों मेरी तरफ चल पड़े और कुछ लम्हों के बाद वो मेरी मेज़ पर पहुंच गए। सॉरी, हम तुमसे बैठने की इजाज़त नहीं लेंगे, गो तुमने कहा, लेकिन मेरी तो कुव्वत गोयाई ही सलब हो गई है और जो कुछ देख रहा था वो दीवानगी के आलम में तो देखा जा सकता था, आलम होश में नहीं। उन्होंने बैठने की कोई इजाज़त नहीं ली और कुर्सियां खींच कर बैठ गए। मैं बदस्तूर पागलों की तरह उन्हें देख रहा था। कुरोती के चेहरे पर नफ़रत के आसार थे और गौतम बंसाली के चेहरे पर तमस्खर के। और फिर गौतम बंसाली ने कहा कि तुम्हारा मिल जाना एक दिलचस्प इत्तेफाक है ज़ीशान अली। हम तुम्हें तलाश करके ज़रूर मिलते और तुम्हें अपने बारे में बताते, लेकिन तुम तो खुद मिल गए। खैर, लेकिन तुम्हारी किताब के बारे में तो हम नहीं कह सकते कि पूरी होगी या नहीं, लेकिन हमारी किताब भी बहुत से दिलचस्प वाक़यात तहरीर हो गए हैं। तुमने तारीख़ में बहुत बड़ा अपसेट किया है। तुम जानते हो कि हम सदियों से ज़िंदा हैं और आगे ना जाने क्या होगा। और मैं उसी लम्हे से कुरोती को चाहता हूँ जब हम अमर नहीं हुए थे और फिर हमने अमृत जल पी लिया। मैंने हर दौर, हर माहौल में कुरोती का पीछा किया और उसकी नफ़रत ही पाई, लेकिन उसने अपने मन में किसी और को नहीं बसाया। हाँ, ये तुम्हारे सामने बेबस हो गई और उसने अपना प्रेम, अपना शरीर तुम्हें सौंप दिया। ये गलत था। उसने तुम्हें मेरे हाथों से महफूज कर दिया, वरना तुम्हारी तो अब राख भी बाकी ना होती। और जब मैं रकाबत की आखिरी मंजिल तक पहुंच गया तो आखिरी अमल मैंने उसके साथ किया और उसे पिंजर बना दिया। हम दोनों एक दूसरे का जीवन तो नहीं छीन सकते, लेकिन जो मैं कर सकता हूँ मैंने किया और मैंने इसे कब्र में दफन कर दिया, ताकि जब तुम कुदरती मौत मर जाओ तो मैं इसे निकाल कर इसका शरीर इसे वापस दूँ, क्योंकि ये अमल मुझे मालूम था। मैंने अपने चेले गंगोत्री को तुम्हारे पीछे लगा दिया ताकि वो तुम्हारी कुदरती मौत तक तुम्हें उलझाई रखे, लेकिन फिर हालात बदल गए और जिसके बारे में कुरोती तुम्हें बताएगी। मेरी नज़रें कुरोती की तरफ उठ गई। वो बदस्तूर नफ़रत से मुझे देख रही थी। उसने कहा कि मैं तुम पर मर मिटी थी अली, और मैंने अपनी सदियों की तपस्या भंग कर दी थी, लेकिन तुम कभी मेरे मर्द नहीं बन सके। मैं हमेशा तुम्हारी मजबूरी बनी रही, और उस समय भी जब मैं अपने असल रूप में थी, और उस समय भी जब मैं दूसरों के शरीर में अपना कर तुम्हारे सामने आती रही। अली, कैसे लेखक हो, औरत की कहानी आज तक नहीं जान सके। औरत पर कभी कुछ नहीं लिखा। औरत प्रेम का दूसरा रूप है। उसके संसार का सारा सुख प्रेम है और बाकी सब बाद में आता है। मैंने तुम्हारी आंखों में कभी अपने लिए प्रेम नहीं देखा। तब वह रुकी और फिर बोली, मैं कब्र में दफन थी। बंसाली ने ऊंचा दांव मारा था और मुझे कब्र में ही रहना पड़ता। ये मुझे तुम्हारी मौत के बाद ही बाहर निकालता, और तुम्हें तभी मौत ही मरना था, क्योंकि ये तुम्हें समय से पहले मार नहीं सकता था। मैं कब्र में रहती, लेकिन एक दिन इस पर फिर प्रेम की दीवानगी सवार हो गई और उसने मुझे कब्र से निकाला और रोते हुए बोला, कुरोती, कब्र में तुम्हें तकलीफ़ होती है ना, ये तकलीफ़ मैंने तुम्हें दी है। तुम हड्डियों का पिंजर बन गई हो।
یہ کام بھی میں نے کیا ہے۔ بس کروتی، میں پریم کرتا ہوں تم سے۔ غصہ، حسد اور رقابت میں جو کچھ کر بیٹھا کر لیا۔ بس میرے پاس تمہارا علاج ہے کروتی، میں تمہیں ٹھیک کر دوں گا اور بس، اور پھر تم سے دور چلا جاؤں گا۔ تم علی کے ساتھ رہنا جب تک وہ جیتا رہے۔ اس نے مجھے میرا شریر دے دیا، بڑی محنت کی اس نے مجھ پر اور میں ٹھیک ہو گئی۔ اور پھر اس نے مجھ سے دور نکل جانے کا عمل شروع کیا، لیکن میں نے اسے دیکھا اور اس کے من میں جھانکا اور حیران رہ گئی۔ مجھے جس سکھ پریم کی تلاش تھی وہ تو اس کی آنکھوں میں تھا اور اس کے من میں تھا۔ جب کہ تم دوسری لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے پھر رہے تھے، تب میں نے اسے روک لیا اور اس کی چھاتی سے سر ٹکا کر کہا، بنسالی، میں تم سے پریم کرتی ہوں، اور وہ خاموش ہو گئی۔ بہت دیر کے بعد میں نے پوچھا کہ اب تم دونوں کہاں جا رہے ہو؟ اپنی کوٹھی میں، وہاں سے اپنی کتاب میں ہم صدیوں کے اور روپ دیکھیں گے۔ یہ صدیاں تو لاکھوں سالوں پر محیط ہیں۔ اٹھیں ڈارلنگ، گوتم بنسالی نے کہا، اور کچھ دیر کے بعد دونوں باہر نکل گئے۔ میں بھی باہر آ گیا اور تب میں نے ان دونوں قیمتی کاروں میں سے ایک کار کو ہوٹل سے باہر جاتے ہوئے راستے پر آگے بڑھتے ہوئے دیکھا، اور اس وقت تک اسے دیکھتا رہا کہ جب تک اس کی سرخ روشنیاں نظروں سے اوجھل نہ ہو گئیں۔ اللہ حافظ میرے دوستو، اللہ حافظ۔